हेलो प्यारे बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज इन अ सिस्टम कंप्राइजिंग of two particles of mass 2 kg and 5 kg, the positions of the both particles, two particles at t equals to 0 are given as 4i cap plus 3j cap and 6i cap minus 7j cap plus 7k cap respectively, and the velocities are also given 10i cap minus 6k cap and 3i cap plus 6j cap respectively. Deduce the velocity of the center of mass at position of the center of mass t equals to 0 and t equals to 4 सेकेंड. ठीक है, तो सबसे पहले क्या पूछा हमसे कि किसी एक पार्टिकल की वेलोसिटी निकालिए t इक्वल टू 0 पर और t इक्वल टू 4 सेकेंड पर. साथ साथ पूछा है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी बताना है ना, अगर ये सारी कंडीशंस गिवन है तो. सो फर्स्टली वी विल गो फॉर द की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट क्या है इसका? तो ये जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो लगेगा एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है इसका, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2. सिमिलरली y एक्सिस के लिए भी है ना, y सेंटर ऑफ मास, सिमिलर फॉर्मूला है m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2. ये हो गया बेटा कोऑर्डिनेट्स के लिए. इफ वी मूव फर्दर, so we have for velocity also, velocity of center of mass equals to, we have m1 v1 x1 plus m2 v2x upon m1 plus m2, and similarly for a second also y cent है ना, velocity of center of mass along y. this is for x and this is for y. ठीक है, तो y के लिए भी निकाल सकते हैं ऐसे ही अपन m1 v1 y plus m2 v2y upon m1 plus m2. so we can move further to do this question. इस क्वेश्चन करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं. so we have firstly x center of mass. देखते हैं x center of mass क्या आता है. so we have a formula already by keeping all the values from here. डेटा दिया हुआ ये रहा 4i cap plus 3j cap, यानी ये जो है ना बेटा ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और ये जो है उनकी वेलोसिटीज दी हुई हैं. ठीक है, तो वहां से अगर वैल्यूज को निकालते हैं तो m1 की वैल्यू आ गई आपकी 2. ठीक है, x1 की वैल्यू जो आ गई है ना, x1 की वैल्यू आ गई यहां से बेटा 4, एज यू कैन सी हियर 4 प्लस m2 की वैल्यू आ गई बेटा 5 और x2 की वैल्यू आ गई बेटा 6. ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 अगर निकाले तो m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 7, यानी दिस इज इक्वल्स टू गोइंग टू बी 8 प्लस 30 upon 7, that means 38 by 7. this will be along I cap, so it will 5.42 I cap. okay, so this is x center of mass. Similarly we can find out y center of mass also. so y center of mass equals to, again the same thing, m1 y1, that means 3 plus m2 y2. okay, so we have 5 into y2 equals to minus 7, as you can see in the above question here. so we have again 7, it will 6 minus 35 by 7, so it will minus 29 by 7 j cap. okay, on calculating this we will have 4.14 something, that is j cap. okay, if we move further, अगर हम फर्दर आगे मूव करते हैं, सो वी हैव फॉर z एक्सिस ऑल्सो. सो फॉर अ z एक्सिस z सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू, हमारे पास क्या होगा, z सेंटर ऑफ मास अगर निकाले अपन, सो सेम थिंग m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2. so for a first particle z is not given, so 2 into it will be 0 plus 5 into, for second particle it is given 7 upon again the 7, and it will almost 35 by 7 k cap, that means 5 k cap.
So we have all the coordinates of center of mass. On moving further, अगर आगे मूव करें तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, लेट्स सी, हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2. सो वी विल हैव 2 इंटू 10 v1x, आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 आई कैप है, तो 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 3 अपॉन 7, so it will 35 by 7, that means it will have 5 I cap. Similarly, we can find out center of mass, velocity of center of mass along y axis. So it will 2 into y के along क्या है, वैल्यू 0 है, यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो 2 इंटू सेकेंड के लिए क्या है, y की वैल्यू 0 है यहाँ पे, आप देखिए, तो 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 6, है ना, ठीक है, अपॉन हो जाएगा आपका 7 इक्वल्स टू 30 by 7, that means it will 4.28 j cap. Okay, so this is velocity of center of mass along the y-axis. On moving further, we will have the same value along the z-axis, v center of mass along z-axis, which is equals to 2 into minus 6 plus 5 into 0 upon again 7, so it will minus 12 by 7, so it will be approximately minus 1 almost 1.71, okay, 1.7 k cap. So this is all value we have find it. Now the value of center of mass, है ना, center of mass 80 equals to 0, और यही हमें फाइनली निकालना था, ये तो हमने निकाला ही है। तो सेंटर ऑफ मास 80 इक्वल्स टू 0, t इक्वल टू 0 पर जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा, हम सारी वैल्यूज को रख देते हैं, है ना। तो r सेंटर ऑफ मास अगर निकालना चाहे अपन तो क्या निकाल सकते हैं, 5.42 आई कैप माइनस 4.14 j cap and plus 5 k cap. Okay, similarly we have velocity of center of mass, and this is one more thing, this is for ये जो रहा ना, ये पूरे हमारे सबका कोऑर्डिनेट है ना, इसमें तीनों का कोऑर्डिनेट इंक्लूडेड है, ठीक है। नाउ अगर आगे मूव करें, सो वी हैव further velocity of center of mass, and that is 2 into 10 plus 5 into 3 upon 7, and finally we will have 35 by 35 by प्लस में हो जाएगा ये 7 आई कैप, एंड दिस इज फॉर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये फाइनल हमारे पास रिजल्ट रहा। अगर एक चीज और आगे हम बढ़ाएं तो हम फाइनली इसको ये तो लिख ही सकते हैं, बाकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी वाई वी जेड के कैप, हमने ऑलरेडी निकाल रखा है ना। यहाँ पर के कैप निकाल रखा है, फिर इधर हमने निकाल रखा है सारी वैल्यूज को, इधर देखो आप 5 आई कैप एंड 4.28 जे कैप, ठीक है। तो इन सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सो इट विल 5 आई कैप प्लस 4.28 जे कैप माइनस 1.71 के कैप। अगर आपको पोजीशन निकालनी है देन पोजीशन के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे आप, S इक्वल्स टू वी इंटू टी। यू विल हैव, सबसे पहले आप निकाल लेंगे x के लिए, तो क्या करेंगे आप, जो वेलोसिटी है उसको मल्टीप्लाई कर दे टाइम t इक्वल्स टू 4 पे, तो 5 इंटू 4 यू विल हैव 20, ओके, एंड अगेन 4.28 into 4 you will have 16.11, this will be I cap, this will be J cap, and this will be finally 1.71 into minus 1.71 into 4 equal to minus 4.28,
4.56 के कैप। और देखो इतना तो नया पोजीशन मिला है ना, कुछ पोजीशंस पहले था, ये तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिला हमारे पास, कुछ पोजीशंस ऑलरेडी पहले थे हमारे पास। तो अब क्या होगा, अब जो नया केस बनेगा उसमें क्या यूज करेंगे अपन, जो नया केस बनाएंगे अपन उसमें यूज करेंगे टोटल एस, टोटल हम कह सकते हैं डिस्टेंस और पोजीशन एट अ टाइम इक्वल्स टू टी, दैट मीन्स एट 4। सो कुछ तो पहले ऑलरेडी था एंड दैट एडिशनली जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उसको हम एड ऑन करेंगे, सो इट विल बी 5.42 और ऑलरेडी ये 20 था बेटा, सो इट विल बी आई कैप प्लस माइनस 4.14 प्लस 16.11 जे कैप and plus 5 minus 4.56 k cap. Okay, so it will now 25.42 I cap plus 11.97 j cap and finally 0.44 k cap. So this will be your velocity. Okay, तो ये रही आपकी वेलोसिटी। और इसके पहले हम ऑलरेडी क्या आपको बता चुके हैं, इसके पहले ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं पोजीशन, दैट मीन्स एक्स। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।